حضرت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے اور دجال کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے؟ کیا سابقہ کتابوں میں جو نشاندہی کی گئی تھی آج کے حالات ان کے مطابق ہیں؟ کیا امام مہدی علیہ السلام اور دجال کے ظہور کا وقت آن پہنچا ہے؟ ناظرین، ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم ان حالات کا تذکرہ کریں گے کہ جن حالات میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم ان حالات کا تذکرہ کریں گے کہ جب دجال آئے گا۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو بہت ریسرچ کے بعد بنائی گئی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کا انتخاب کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کا ٹائم فضول ضائع نہیں کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کیا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا جب حکمران ظالم ہوں گے، زمانے میں انصاف ختم ہو جائے گا اور عورتوں کا نفوذ حکومت میں ہوگا۔ آخری زمانے میں حکومتوں کے مسائل میں ایک مسئلہ عورتوں کا حکومت میں ہونے کا ہے۔ خواتین ان لوگوں کی حاکم ہوگی اور حکام ان کے ماتحت ہوں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بدکار اور زناکار لوگ حاکم ہوں گے اور نیک اور ایماندار لوگ کمزور ہوں گے۔ تو لوگوں نے فرمایا، مولا ایسا وقت کب آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا، جب عورتیں اور کنیزیں لوگوں کے امور سے مسلط ہوں گی اور بچے حاکم ہو جائیں، جبکہ حاکم کو تجربہ کار ہونا چاہیے تاکہ لوگ سکون و اطمینان سے زندگی گزار سکیں۔ آخری زمانے میں حکومتیں پائیدار نہیں ہوں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ صبح کو حکومت تشکیل پائے تو غروب کے وقت زوال پذیر ہو جائے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تم کیسے ہوں گے جب تم کسی امام کے بغیر زندگی گزار رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے نفرت اور بیداری کے طالب ہوں گے، اور یہ اس وقت ہوگا جب تم آزمائے جاؤ اور تمہارے اچھے برے لوگوں کی پہچان ہو جائے اور خوب ابال آ جائے۔ اس وقت تلواریں کبھی غلاف میں اور کبھی باہر ہوں گی، جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ ایک حکومت دن کی ابتدا میں تشکیل پائے گی اور آخری روز میں زوال پذیر ہو جائے گی، یعنی کہ گر جائے گی۔ اس زمانے میں اسلام اور قرآن کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ مسلمان صرف نام کے ہی مسلمان ہوں گے۔ قرآن معاشرے میں موجود ہوگا لیکن لوگ اس کی تلاوت یا اسے پڑھیں گے نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ خدا کو نہیں پہچانیں گے اور توحید کے معنی نہیں جانیں گے، اور دجال خروج کرے گا۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تبلیغ دین لوگوں کی ہدایت اور ارشاد کی جگہ ہے۔ صدر اسلام میں حکومت کے اہم کام بھی مسجد میں انجام دیے جاتے تھے۔ جہاد کا پروگرام مسجد میں بنتا تھا۔ انسان مسجد سے معراج تک گیا۔ آخری زمانے میں مسجد اپنی اہمیت کھو بیٹھیں گی اور دینی رہنمائی اور ہدایت تعلیم کی بجائے مسجدوں کی تعداد اور خوبصورتیوں میں اضافہ ہوگا۔ مساجد مومنین سے خالی ہوں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس زمانے میں مسجدیں خوبصورت ہوں گی لیکن ہدایت و ارشاد کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ آخری زمانے کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ آخری زمانے میں دین معمولی اور گھٹیا قیمت پر فروخت کیا جائے گا، اور جو لوگ صبح مومن تھے ظہر کے بعد کافر ہو جائیں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک مسجد امام کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج دین گھٹیا قیمت پر بیچا جا رہا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے قبل فتنہ، فساد، بے ایمانی، ظلم و ستم، اور زمین ظلم و ستم اور ناانصافی سے لبریز ہوگی۔ خونی جنگ کا آغاز ملتوں اور ممالک کے درمیان ہو چکا ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں تو غزہ اور فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہودی جنگ ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے۔ تمام اسلامی ممالک اس بات پر خاموش ہیں، کوئی فلسطین کی مدد کو نہیں آ رہا، کیونکہ اسرائیل تمام ممالک پر قابض ہو چکے ہیں۔ آج ملک IMF کے بغیر نہیں چل سکتا، اور IMF بینک کے آنر کون ہیں؟ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ آخری زمانے میں قتل ناحق اس قدر زیادہ ہوگا، کوئی گھر یا خاندان ایسا نہیں ہوگا جس کے ایک یا چند عزیز قتل نہ ہوئے ہوں گے۔ مرد اور جوان جنگوں کے اثر سے ختم ہو چکے ہوں گے، یہاں تک کہ 3 میں سے 2 آدمی قتل ہوں گے۔ خوف اور وحشت ہر انسان کے دل پر بیٹھی ہوگی۔ ناگہانی اور حادثاتی موتوں کی کثرت ہوگی۔ معصوم بچے بدترین شکنجوں کے ذریعے ظالم اور جابر حکام کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے۔ سڑکوں اور چوراہوں پر
हामला औरतों के साथ तजावुज होगा, जानलेवा बीमारियां कसीर तादाद में होंगी, खाने पीने की एशिया में कमी होगी, महंगाई और कहत से लोगों की जिंदगी मफलूज हो जाएगी, जमीन बीज कबूल करने से इनकार कर देगी, बारिशें नहीं होंगी या अगर होंगी तो वो भी बेवक्त और जोर जोर से होंगी। कहत ऐसा पड़ेगा कि लोगों की जिंदगी इतनी दुश्वार और मुश्किल हो जाएगी कि बाज़ लोग अपने अपने बेटे और बेटियों और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने औरतों और बच्चियों को मामूली ग़ज़ा के लिए किसी दूसरे के हवाले कर देंगे। ऐसे मुश्किल और तंग हालात में इंसान नाउमीदी का शिकार हो जाएगा और उस वक्त मौत अल्लाह का बेहतरीन तोहफा समझी जाएगी और सिर्फ लोगों की आरजू मौत बन जाएगी। नीज ऐसे माहौल में जब कोई शख्स लाशों या कब्रिस्तान के दरमियान से गुजर रहा होगा तो उसकी आरजू बस इतनी होगी कि काश मैं भी इन्हीं में से कोई एक होता। इस जमाने में इंसाफ खत्म हो जाएगा और ताकतवर के लिए कोई कानून ना होगा और ना ही इन्हें कोई पूछेगा, और गरीब के लिए कानून होगा और गरीब की कोई नहीं सुनेगा और गरीब हमेशा पीसता रहेगा। तो उस वक्त नाउमीदी जो पूरे जहान में फैल जाएगी, अल्लाह ताला अपनी रहमत से इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमाएंगे और आसमान से गैबी आवाज़ आएगी जो हर इंसान के कान से टकराएगी कि ए दुनिया वालों, सितमगरों की हाकिमियत का ज़माना ख़त्म हो गया और अब अदले इलाही से पुरहुकूमत का दौर है और इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़हूर कर चुके हैं। ये आसमानी आवाज़ इंसान के बेजान दिल में उम्मीद की रूह फूंक देगी और मायूस लोगों को निजात का जरिया मिल जाएगा। जो रवायात पैगंबर और आइमा अलैहिस्सलाम से हम तक पहुंची हैं, उनमें हुकूमतों का आम नक्शा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के क़याम से कबल बयान किया गया है। ज़हूर से कबल जहां बहुत से मसाइल होंगे, बहुत से फितने होंगे, उन फितनों में एक फितना दज्जाल का भी है। नाज़रीन गिरामी, अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से की जानब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो क़यामत के नज़दीक ज़मीन पर तबाही फैलाने आएगा। अल्लाह ताला ने दज्जाल को गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा होगा। दज्जाल इन ताकतों का इस्तेमाल बुराई और शर फैलाने में करेगा। बेशुमार अहदीस में दज्जाल के ज़हूर की तबाही और इसकी निशानदाइयों का जिक्र किया गया है। दज्जाल की आमद की निशानियां आस्ता आस्ता पूरी होती नजर आ रही हैं। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतल्लक फरमाया कि दज्जाल के पास आग और पानी होंगे। जो आग नजर आएगी दरअसल वो ठंडा पानी होगा और जो पानी नजर आएगा वो आग होगी। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके पास रोटियों का पहाड़ और पानी का दरिया होगा। इसका मतलब ये है कि दज्जाल के पास पानी और ग़ज़ा वाफिर मिकदार में होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बातों के लिए वो नहायत हकीर होगा, लेकिन अल्लाह इसे इसकी इजाज़त देगा ताकि लोगों को आजमाया जा सके कि वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं या दज्जाल पर। और फिर दज्जाल अपने साथ एक दरिया और आग लेकर आएगा और जो उस आग में पड़ेगा उसको उसका सिला मिलेगा और वो इंसान खुशकिस्मत होगा और अल्लाह के कुर्ब के करीब होगा। और जो उसके दरिया में उतरेगा उसका बोझ उस पर बरकरार रहेगा और उसका सिला उससे छीन लिया जाएगा और यकीनन वो लोग खसारे में होंगे। अल्लाह ताला दज्जाल के साथ शैतानों को भेजेगा जो लोगों के साथ बातें करेंगे और उन शैतानों में से एक शैतान एक बद्दू इंसान से कहेगा कि मैं अगर तुम्हारे माँ और बाप जो कि मर चुके हैं तुम्हारे लिए दोबारा जिंदा कर दूं तो तुम ये शहादत दोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। बद्दू इंसान बोलेगा हाँ। जो दो शयातीन उस शैतान के साथ होंगे वो उस इंसान के माँ बाप की शक्ल में उस बद्दू इंसान के सामने आ जाएंगे और कहेंगे, ऐ मेरे बेटे, इसका हुक्म मानो, ये तुम्हारा खुदा है। दज्जाल का कब्जा हर उस चीज पर होगा जो जिंदगी के लिए जरूरी होगा, मसलन पानी, आग और ग़ज़ा पर होगा। इसके पास बेतहाशा दौलत और जमीन के खजाने होंगे और उसकी गिरफ्त तमाम कुदरती वसाइल मसलन बारिश, फसलें, कहत और खुशहाली वगैरह पर होंगी। वो अपने साथ एक नकली दोज़ख और जन्नत लाएगा और उसकी मदद शयातीन करेंगे जो मुर्दा लोगों की शक्ल में जाहिर होंगे और लोगों से बातें करेंगे। वो जिंदगी और मौत पर जाहिर तौर पर कुदरत रखेगा। अब इस वीडियो की सबसे अहम मौजू पर बात करते हैं। नाजरीन, आज से पहले हदीस शरीफ में बयान करदा असल हक़ाइक़ पर ईमान बिल गैब के अलावा कोई चारा न था, लेकिन जैसे जैसे हम दज्जाल के दौर की तरफ बढ़ रहे हैं ये हक़ाइक़ आलम गैब से उतरकर
आलम शहूद का हिस्सा बनते जा रहे हैं, क्योंकि दज्जाल मादी कुव्वतों से हावी होगा और साइंस मादा में पोशीदा कुव्वतों को जानने और काम में लाने का दूसरा नाम है। लिहाजा यहूदी सरमायादारों के पैसे और यहूदी साइंसदानों की मेहनत से साइंसी इजादात जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, दज्जाल की ताकत को समझना आसान होता जा रहा है। आइए दज्जाल की ताकत को एक एक करके दौरे हाजिर में देखते हैं। नाजरीन, अगर दज्जाल की दौलत और खजाने की बात करें तो ये बहुत से लोग जानते हैं कि दुनिया की मेशत के 2 दरवाजे वर्ल्ड बैंक और IMF चला रहे हैं, जबकि ये भी लोगों को पता है कि इनको मेशत की आलमी नब्ज कहा जाता है। दुनिया की आलमी मेशत का इन्हिसार इन्हीं 2 अदारों पर माना जाता है। इसके अलावा सभी जानते हैं कि ये अदारे किस तरह मकरूज मुल्कों पर दबाव डालकर अपनी हर जायज और नाजायज बात मनवाते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग जानते हैं कि दुनिया को चलाने वाले अदारे, इन अदारों को कौन चलाता है। इनको इंटरनेशनल बैंकर का ग्रुप चलाता है और इस ग्रुप को फ्री मैनेसरी के बिग ब्रदर चलाते हैं, जो कि दज्जाल के आलम इक़्तिदार की राह हमवार करने के लिए मुश्किल को काबू रखने के लिए सरगर्म है। नाजरीन, अब आपको हम थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं। कुछ अरसा पहले एक किताब शाया हुई थी जिसका नाम कारपोरेशन की हुकूमत है। नाजरीन, ये किताब एक अमेरिकी जोड़े ने लिखी थी। प्यारे दोस्तों, इन्होंने करेंसी नोट के मुतल्लिक लिखा कि ये आस्ता आस्ता खत्म हो जाएंगे और इसकी जगह क्रेडिट कार्ड ने ले लेनी है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड का दौर भी खत्म हो जाएगा और लोग कंप्यूटर के जरिए अदाद व शुमार बराबर करेंगे और बस हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इन्होंने बताया, अगर जल्द ही इन शैतानी कुव्वतों के खिलाफ अगर कोई बड़ा इक़्तिदाम न उठाया गया तो आने वाली दुनिया का नक्शा इंतहाई भयानक होगा। प्यारे सुनने वालों, क्या आज हम में से बड़ी तादाद उन लोगों की नहीं है जो क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन वगैरह रकम ट्रांसफर करते हैं, यानी हमारे हाथ पैसों से खाली है? क्या हम बैंकों के मकरूज नहीं हैं जो बैंक यहूदी चला रहे हैं और यहूदी दज्जाल की राह हमवार कर रहे हैं? दज्जाल को दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। यहूदी ही वो कौम है जो दज्जाल की मदद करेंगे। लोग दज्जाल की तरफ इसलिए भी बढ़ जाएंगे क्योंकि दज्जाल के पास दौलत वाफर मिकदार में होंगे। दज्जाल के ज़हूर से 3 साल पहले ही दुनिया कहसाली का शिकार हो जाएगी। उलमा और दीनदार लोग बहुत कम रह जाएंगे। लोग दीन से दूरी इख्तियार करेंगे, नमाज के अव्वल वक्त का एहतराम नहीं करेंगे, जना आम हो जाएगा, जमाने में बेबरकती हो जाएगी और ऐसी ही बेशुमार निशानियां जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत और दज्जाल की आमद से पहले इस दुनिया में पूरी हो चुकी हैं और चंद इक्का दुक्का बड़ी निशानियां जो रहती हैं वो भी अनकरीब पूरी हो जाएंगी। नाजरीन, अब इस पूरी वीडियो के नतीजे की तरफ बढ़ते हैं। क्या जो मैंने आपको इमाम महदी से पहले आने वाले जमाने या दज्जाल से पहले आने वाले वक्त के बारे में जो निशानियां इस वीडियो में बताई हैं, आप अल्लाह को हाज़िर नाज़ जानते हुए बताएं, क्या आज हम उसी दौर में नहीं रह रहे? क्या हम पर औरतों की हुकूमत मुसल्लत नहीं की गई है? क्या हमारे ज़माने में नाइंसाफियाँ अरूज पर नहीं है? क्या हम कहत साली की तरफ नहीं बढ़ रहे? क्या हमारी औरतें इस दौर में महफूज हैं? आप खुद बताएं कि चंद पैसों की खातर कोई भी इंसान जायज़ या नाजायज़ काम करने पर मजबूर नहीं है? क्या हमारी मस्जिदें वीरान नहीं हो गई? हम अल्लाह से दूर नहीं हो गए? और जो मैंने आपको दज्जाल के मुतल्लिक बताया है, क्या यहूदी पूरी दुनिया पर काबिज नहीं है? गजा, फलस्तीन, क्या जंग की कैफियत की तरफ हम नहीं बढ़ रहे? मॉडर्न दौर के नाम पर हमारी जेबें पैसों से खाली हैं। सब ऑनलाइन है और कंट्रोल यहूदी कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांकें, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह चुके हैं। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अगर मौजूदा हालात को देखा जाए, मौजूदा हालात को परखा जाए, शायद वो तमाम निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए बयान की गई थी। आज हमारी हुकूमतें देख लें, आज हमारे हुक्मरान देख लें, आज हमारी मस्जिदें देख लें, आज हमारे उलमा देख लें। अगर आज हम अपने आप को देख लें, अपने घरों को देख लें, तो शायद वो तमाम निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अनकरीब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है। और आखिर में तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी नई और इस्लामी वीडियो आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंच सके। और आपसे जल्द मुलाकात होती है अगली नई और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का
ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।